Good afternoon, friends. Today we are at the Lee Meridian Hotel, New Delhi. So we are in a conference which is on the I4IC. I4. So this is about the talent pool, what we have in India. And in the morning session, we had the senator from Australia, and there were other eminent people. I'm joined in by Dr. Manpreet Singh. So he comes in from Punjab. And now we'll give it to you, the mic, sir. So you could introduce yourself and you could talk about what you've attended a panel discussion. So you're part of the panel discussion. So you could tell us what is the key takeaway today, sir. Thank you. Today, this conference I4IC, that is Industry 4.0 conference, especially designed for the Indian students, being a student centric, we invited our counterpart from Australia and other countries, as you have witnessed, and the parallel brainstorming sessions are happening, and the great academic leaders of our country, bureaucrats, industrialists, they joined us. And what is the discussion here? It is the discussion when we have the great institutions here, universities here, but still we say there is a gap with the employability. Sometimes industry is not ready to take our students directly until unless they go for the reskilling or they are going to be get some enhancement of skills. For why our graduation is not complete itself? Why our campuses are not giving the true spirit education to our learners? So, if there is a gap, why don't industry come one step ahead to the institutions to give the skills what they are looking from them when they will come to the floor? So, this gap has to be filled. The ego of the industry and the institution should be keep away to make our students ready for the industry 4.0. It is a big brain drain happening when the outside India our students are doing amazingly. Look at the great industries outside India. Who is the head of that? Of course, Indian origin person. You talk about the Google, you talk about the Facebook, you talk about the Yahoo, you talk about the Microsoft. And then what happens when we talk about the Make in India, Digital India? Our students are not going to be placed there. So today in this conference, we ask the very honest questions to the academic leaders, including vice chancellors of our country, including deans of our country. Are we in the same track? NEP 2020 is already implemented. Do we are executing in the same track? So let the industry to come to teach in the classroom so that they should have a feel of the professor and the professor should go to the industry same time to understand what industry is looking from the students point of view. Otherwise, there is a one campus in institution, one more campus as a training center we are starting in the industry. And student is saying, earlier after 3 years, I was able to reach to the campus to industry. Now you need masters, you need PhD, you need so many other kind of additions to my this. Yes. So we want that this gap should be minimized. Let industry to come join hands with the institution to design the curriculum as per their need, and same times the faculty development. The mindset of the faculty has to be get changed. The faculty should be ready to teach the students for the industry perspective, not from their old curriculum perspective. They never wish to change what they are teaching from last many years, and sometimes they are blaming something to industry, and the same it's happening with the industry never come forward to teach the teacher what exactly they are looking, but they are simply saying you are not giving the good product to us. So these kind of a conferences should happen, this kind of workshops should be happen. It is valid, industry point is valid, but we have to fill the gap because main sufferers is the student. Student should not suffer in the any kind of a gap between the two different फर्टिलिटीज ऑफ माई कंट्री. अदरवाइज आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाएगा जब तक कौशल और शिक्षा का ज्ञान एक जगह से ना दे सकें. शिक्षा यहाँ से लो, कौशल वहाँ से लो, नहीं चलेगा. जब कौशल लेने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा. जहाँ शिक्षा दे रहे हो वहीं पे कौशल देना पड़ेगा, वहीं पर आपको बुद्धि देनी पड़ेगी, वहीं पे आपको समझ देनी पड़ेगी. तो बच्चा कह सकता है कि मैं विश्वविद्यालय में हूँ, नहीं तो वो एक छोटा सा सेंटर कहलाएगा फॉर अ डिग्री सेलिंग इंस्टीट्यूशन. So that gap has to be get filled. This is what we are here. डॉक्टर साहब आपने यू हैव एड्रेस दिस प्रॉब्लम वेरी नाइसली, आपने समझाया. और मॉर्निंग के जो सेशंस थे उसमें एक सवाल उठा था, जो फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन था, जिसमें नासकॉम के मैडम थी, मस्कीरती थी, एंड सेनेटर वो बगल बगल में बैठे हुए थे, कौड़ा जी थे पंजाब से.
और नेहा जी मॉडरेट कर रही थी, तो उसके अंदर एक सवाल उन्होंने बोला कि हम लोग जो इंडियंस हैं, जो भारतीय मूल निवासी है, वो पढ़ाई लिखाई करके फिर बाहर चला जा रहा है, एंड सो वाई शुड वी हैव टैलेंट गोइंग अब्रॉड। और ड्यूरिंग दिस पैनल डिस्कशन जो सर आपका हो रहा था, तो एक यूके से आई हुई है मैम मार्कीटा, सो दे आर द एक्चुअली द होस्ट ऑफ टुडे। जो एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ है उनकी और ये सब संस्थाएं जो हैं, उन्हीं के अंडर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो जब हमने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि दे वांट द पीपल इन यूके, बड़ा अच्छा सोच रहा उनका, कि जो भारत से जाएंगे बाहर विदेशों में स्टडीज़ ओवरसीज एजुकेशन के लिए, सो दे शुड कम बैक टू इंडिया, दे शुड गिव टू देयर कंट्री। जैसे अब पीछे कोरोना में काफ़ी लोग जो विदेश चले गए थे एंड दे वर लीविंग जॉब्स एंड दे सेड कि भारत हमारा देश है, हमारा महान भारत। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि जो भारत से जब टैलेंट जाता है, जहाँ काफ़ी साल पहले डॉक्टर मिश्रा जो डायरेक्टर थे एम्स के, तो वो स्मार्ट सिटीज़ की एक कॉन्फ्रेंस थी जिस तरह से आज हो रही है, तो उस टाइम में उन्होंने बोला कि मैं जब डॉक्टर बना, फिर मैं अपने शायद लखनऊ से थे वो, लखनऊ से दिल्ली आ गए, बोले अब मैं डायरेक्टर बना, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैं वापस अपने लखनऊ नहीं जा रहा। तो बोले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेट्रोस की है, जो दिल्ली है, जो कैपिटल राजधानी है, तो सिमिलर समस्या है कि विदेशों में लोग जब जा रहे हैं, ठीक है वहाँ पे दे हैव देयर लैंड, उधर कोई समस्या नहीं है अकोमोडेशन की, तो बट इट्स अ मेजर प्रॉब्लम विच हमारे समाज को इसमें कुछ सुधार करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बात कहूँगा, हो सकता है कि कुछ लोग मेरे साथ सहमति ना दें। मैं जहाँ भी जाता हूँ, एवरीवेयर दे टॉक अबाउट द ब्रेन ड्रेन, बट वाई दे डोंट टॉक अबाउट द इकोनॉमी गेन। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब हमारे को भारतवर्ष को इतनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने दी है कि आपके पास 130 करोड़ हैं और बहुत सारे देश हैं जो हमारे स्टेट से भी छोटे हैं, अगर हमारे मूल के लोग वहाँ जाकर कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ उनको नया दे रहे हैं और वहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और इंडियंस जा रहे हैं। आप एक चीज़ नोट कीजिए, आज हमारे भारत में सबसे बड़ी धनराशि की खोलते हैं, चैरिटी करते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? अगर इन सबको हम यहाँ पे रोक भी लेंगे, क्या हम उतने मकान, उतनी सड़कें, उतनी जॉब्स उनको दे पाएंगे? तो उनको जाने से रोकने के लिए तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई हमें परेशानी होनी चाहिए। रादर जब वो जाते हैं तो 10 को और सीख दे के चाहते हैं कि तुम भी कुछ अच्छा करो। और एक चीज़ मानिए, भारतीय मूल में एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, वो अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ा रहता है। हिंदुस्तान में रह के शायद मैं अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। जब मैं हिंदुस्तान से बाहर जाके, जब मैं डॉलर्स में अर्न करता हूँ, तो हिंदुस्तान में आके मैं इंडस्ट्री लगवा देता हूँ, जॉब्स क्रिएट कर देता हूँ, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स को अपॉइंट कर लेता हूँ और लोगों को मैं अच्छी शिक्षा के साथ सेहत भी दे सकता हूँ। तो इसमें बुरी बात नहीं। हाँ, ये भी साथ में मानना है कि अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उतना इक्वलेंट ब्रेन इंडिया की डेवलपमेंट में भी काम में आना चाहिए। हमें सस्टेनेबल करना है इंडियन इकोनॉमी को और साथ में एनवायरनमेंट को, कि वो उनका मन यहाँ पे रुके। क्यों एक आईएएस ऑफिसर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है? क्यों एक गांव का बच्चा शहर के स्कूल में पढ़ने जाता है और छोटे शहर का बच्चा दिल्ली और बॉम्बे में पढ़ने जाता है? इसका मतलब हमने गाँव में वो सुविधा नहीं दी है, हमने गाँव में वो इकोसिस्टम नहीं दिया है। तो हमें खुद भी री इमेजिन करना पड़ेगा, रादर कि हम फॉरेन कंट्री को दोष दें। अगर उनकी सड़कें अच्छी हैं, उनकी सोच अच्छी है और वहाँ पे खाने में मिलावट नहीं है और वहाँ पे करप्शन नहीं है, तो बुरी बात क्या है? हिंदुस्तानी जाके कभी ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं रहा, क्योंकि जो एक बार हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसके खून में हिंदुस्तान रहेगा ही रहेगा और हिंदुस्तान से जुड़ा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर श्योर करना है कि हिंदुस्तान में भी उसका उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जितना वो विदेश में कर पा रहा है, ये ज़रूर होना चाहिए। सर धन्यवाद। जैसे सर ने बोला है, आई फुल्ली एग्री विद हिम कि जब हमारे देश से लोग पढ़ के जाते हैं विदेशों में, और जब वो मल्टीपल उनकी इनकम सोर्स होता है वहाँ पे, जैसे आपने बोला कि डॉलर्स में है, जब पाउंड में है, एंड आफ्टर सम ईयर्स व्हेन दे आर लाइक अर्निंग एंड दे डोंट हैव दैट रिस्ट्रेन कि हमें अभी एक अच्छे उसमें हो जा रहे हैं जैसे लेवल पे, देन दे आर गिविंग बैक टू देयर कंट्री। चेयर्स इधर इतने सारे एजुकेशन संस्थाओं में दे स्टार्ट चेयर्स, फंडिंग प्रॉपर आती है। तो जो आपने बोला है बड़ा वैलिड पॉइंट बोला है, जो हम लोग ओवरलुक कर जा रहे थे कि इकोनॉमिक गेन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सर। एंड फिर आपने जो बोला री इमेजिन, आई फुल्ली एग्री दैट वर्ड री इमेजिन हैज़ टू बी द
की बज़ वर्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके जितने भी मंत्री हैं, चाहे आप आईटी मिनिस्टर ले लें या दूसरे संस्थाओं के, तो प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो मैं उसको डीडी न्यूज़ पे, अगर मैं या तो कवरेज में होता हूँ या मैं घर में डीडी न्यूज़ लगाता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जब वो एनआरआईज जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जब उनको मिलते हैं तो दे आर ऑल टैलेंट पूल ऑफ इंडिया। एंड इंडिया में चाहे मजबूरी उनको ले गई या फिर उनका टैलेंट उनको ले गया, बट दे आर सो प्राउड ऑफ देयर कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दे आर एक्चुअली द एम्बेसडर्स, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ हमारी संस्कृति को साथ में लेके जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उनसे यही तो मांगा है कि हर एक हिंदुस्तानी 5 दूसरों को हिंदुस्तान में घूमने के लिए भेजे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ के हमारे होटल्स में रुकेंगे, हमारी ट्रेन्स में घूमेंगे, हमारे जहाज़ों में घूमेंगे और हमारी संस्कृति को देखेंगे और यहाँ की चीज़ें खरीदेंगे, तो इकॉनमी तो बूम होगी होगी। अगर हमारा वहाँ पे कोई ज्ञान ही होगा तो हिंदुस्तान के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? अमेरिका की खोज कैसे हुई थी? कोई किश्ती लेके वहाँ पे गया था तो अमेरिका पता चला था ना कि यहाँ पे एक आइलैंड है। अब जब हमारा हिंदुस्तानी ही नहीं विदेश में जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि हिंदुस्तान में क्या है, कितनी लैंग्वेजेस में बात होती है, किस तरह का खान पान है, हमारे पास क्या संस्कृति है, हमारी ऋषि मुनियों ने क्या ग्रंथ दे रखे हैं। अगर हमारा आयुर्वेदा बाहर गया तो उनको समझ में आयुर्वेदा क्या है, हमारा योगा बाहर गया तो उनको योगा समझ में आया। नहीं तो हम हिंदुस्तान में योगा करते रहेंगे तो विदेशों को कैसे पता चलेगा? हिंदुस्तानी को बाहर जाना चाहिए। और तो गुरु नानक ने भी कहा था कि जो अच्छे लोग हैं उजड़ो और जो गंदी सोच वाले हैं वो एक जगह पे बसते रहो। तो उस टाइम पे लगा मर्दाना को, आप ये क्या कर रहे हो, आप तो श्राप दे रहे हो अच्छे लोगों को। कहते श्राप नहीं दे रहा हूँ, अच्छे लोग उजड़ेंगे तो दूसरों को अच्छा बनाएंगे और जो गंदे लोग एक जगह पे इकट्ठे रहेंगे तो गंदगी फैलेगी नहीं। डॉक्टर क्या करता है, कैंसर को एक जगह पे बांध देता है, क्लिप कर देता है कि कैंसर पूरे शरीर में नहीं फैलना चाहिए, लेकिन विटामिन तो पूरे शरीर में फैलने चाहिए। तो हिंदुस्तानी तो पूरे वर्ल्ड में फैलने चाहिए, ये मेरा मानना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुरु नानक भी कह के गए हैं, तो यही सोच से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करूँगा। एंड आखिर में जो कि पहले हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, परिचय भी दे दें सर। Myself, Dr. Manu from India for SDG 4, Sustainable Development Goal 4। मैंने 4 साल AICT में एज ए डायरेक्टर भी अपना पद संभाला है और मैं अभी प्रोफेसर हूँ सांत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और बहुत सारे संस्थानों के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि उन संस्थानों के बच्चों को, फैकल्टी को डेवलप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए मुझे जो भी कार्य लगता है मुझे करना चाहिए वो मैं करता आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिर में बस आपका जो है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि जो आपने बोला कि वाहे गुरु, जो गुरु नानक, उनका आशीर्वाद बना रहे भारत पे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छा हो।